नमस्कार दोस्तों। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अपने चीचा की बात कर रहा हूँ। अपने चीचा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अगले 4 सालों में जीडीपी 5.4 पे आ गई है। 2 बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। सारा पैसा तो अंबानी अडानी ले जा रहे हैं। जब 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था तब सड़क पे लौटती थी, आजकल दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। और अपने चीचा बात करते हैं भैंस, माटी, बेटी, मंगलसूत्र, तो जीडीपी तो गिरना ही था। इनको क्या फर्क पड़ता है? तो फ्री का मशरूम तो मिल ही रहा है, कम से कम अगले 4 साल तो और मिलेगा। लेकिन उसके बाद कौन पूछेगा, क्योंकि परिवार तो है नहीं। एक आदमी, इतना योग्य व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, करण थापर के इंटरव्यू में बिफर बिफर के रो पड़ा। थोड़ी सी वो झलक देखिए, फिर आगे बात करते हैं। I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. It's really sad what is happening, and I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. Tushant Dave, I thank you for this very, very powerful interview. The emotion in your voice, the tears in your eyes speak volumes. Sorry. Also, thank you. No, I'm don't sorry. apologize. It was your heart that was speaking. Your heart will reach out to the audience. Your heart will make a point that goes well beyond your passion and your anger. But I want to repeat for the audience some of the important things you said about Justice Chandrachud. You said he was guilty of defying and breaching his own judgment in 2019. You accused him of intellectual dishonesty. You said he has played in the hands of somebody, making it clear that somebody is the BJP and the government. And his ruling of May 2022, you said, could set this country on fire. For your I haven't, honesty, I haven't said that BJP and government he played in hands. I have said he played in hands of somebody. I don't know who. thank you very much for your words, for your passion, for your emotion. Take care. Stay safe. Let us pray that ultimately wisdom prevails on those in power, those in judiciary, and the citizens, and we can all put an end to this. We don't want to become another Pakistan or Bangladesh. We want this India to be Bharat, a nation which has really nurtured long heritage culture of religious tolerance, produced some of the finest religions like Jainism, Buddhism, Sikhism, and we welcomed Zoroastrianism. So we should not be worried about these kind of issues. Absolutely. Thank you very much indeed. Take care. Stay safe. राम के राज में राक्षसों की चल रही है, बताइए क्या कीजिएगा। वो आदमी जिसको शुरू में ठीक समझा गया था वो खेल कर गया। डीवाई चंद्रचूड़ की बात कर रहा हूँ। एक फैसला हिंदुस्तान की सब मस्जिदें खुदवा देगा, ये किसी को पता नहीं था। ज्ञानवापी का फैसला ऐसा सुनाया कि संभल, अजमेर, ताजमहल, लाल किला सब ऐसा लग रहा है कि खुद जाएगा। तो इतनी देर का है कि जनाब, 10 सालों से तो उसी पे चढ़ के भाषण दे रहे थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो लाल मंदिर पे चढ़ जाते। पूछता है भारत, सब खोद डालिए, घुसना तो सबको एक दिन गड्ढे में ही है। कोई दफन हो जाएगा, कोई जल जाएगा। और अपना जी न्यूज़ जो गोदी मीडिया का उस्ताद है, जो गोदी मीडिया का बिल्कुल शीर्ष पे बैठा हुआ है, 1 नंबर का चापलूस चमचा, उनके रिपोर्टर को तो संभल मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर मिल भी गया। ये कैमरा लेके पहुंच गए और सब तस्वीरें खोज के लेके आ गए। ये देखिए ज़रा। गोपाल दास नीरज जी इतने बड़े कवि थे, शायद वो गलत लिख गए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर,
फूल इस किस्म का हर तरफ खिलाया जाए। मजहबी पर तो सब बात अटकी है। जब कोई धर्म ही नहीं होगा, मजहब ही नहीं होगा, तो फिर भाषण कौन देगा, भटकाएगा कौन? मजहबी पर तो सब बात अटकी है। जब कोई धर्म ही नहीं होगा तो भड़काएगा कैसे, तो फिर भड़काया कैसे जाएगा? वोट कैसे मिलेगा? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? और खोदा क्या जाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे कब तक चलेगा? हर 5 साल बाद उंगली दबती है, लेकिन मशीन अपना काम कर देती है। देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और क्या हो गया। चाय बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले, मगरमच्छ पकड़ने वाले जब कुर्सी पर बैठेंगे तो खोदने की बात तो करेंगे ही, क्योंकि कभी कुछ बनाया तो है नहीं। अब उंगली दबाने का नहीं, उंगली करने का वक्त आ गया है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। हमारे पूर्व हाई कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे काटजू कपिल सिब्बल साहब से बात कर रहे हैं और देखिए कुछ क्रांति की बात सुन रहे हैं, कुछ क्रांति की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। और अब बात करते हैं की सत्यता साबित करते हैं। धरती के नीचे खुदाई में मिली ये मूर्ति भगवान विष्णु की है, यानी भगवान हरिहर। इन मूर्तियों को संभल से इस संग्रहालय में रखा गया। मूर्ति 1500 साल पुरानी है, यानी उस वक्त जब मुगलों का नामो निशान नहीं था। इससे साफ होता है संभल में हरिहर मंदिर था। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। हरिहर मंदिर से जुड़ा एक और सबूत देखिए। यह है नक्काशीदार पत्थर की आकृति जो सुदर्शन चक्र है, वही चक्र जो भगवान विष्णु के हाथों में दिखता है। यह अवशेष भी संभल की धरती के नीचे से ही मिला है। ये पत्थर का सुदर्शन चक्र भी हरिहर मंदिर की सच्चाई बयान कर रहा है। दिखाना चाहूंगा आपको, आप देखिएगा ये सभी जो पुरावशेष हैं और ये तमाम आकृतियां हैं, ये लगभग 1 से 1,500 वर्ष पुरानी हैं, जो कि संभल क्षेत्र से प्राप्त की गई हैं। इस पर दिखाना चाहूंगा, देखिए ये एक संभल से प्राप्त किया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि ये भगवान विष्णु की मूर्ति का चक्र है, जो कि संभल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ऐसे तमाम साक्ष्य हैं और एक बड़ा सबसे साक्ष्य यहाँ पर गुप्त काल की लगभग 1,500 वर्ष पुरानी यहाँ पर भगवान विष्णु की आकृति से मिलती जुलती मूर्ति है, जो कि ये साबित करती है कि जामा मस्जिद हरि मंदिर था। यानी ये सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। संभल की खुदाई में मिले इन मूर्ति और सुदर्शन चक्र से ये साबित होता है कि संभल में साक्षात भगवान विष्णु का मंदिर था। पुरातत्वविद अतुल मिश्रा के पिता सुरेंद्र मोहन मिश्र ने संभल के पौराणिक मंदिरों और धार्मिक इतिहास को सामने लाने के लिए कई दशक तक संभल क्षेत्र से पुरातत्व अवशेषों को जुटाया और उसका म्यूजियम बनवाया। बिल्कुल यहाँ पर हरि मंदिर रहा था और 1526 में इसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। आईने अकबरी में भी इसका जिक्र है और पुराने बहुत से साक्ष्य ऐसे मिलते हैं, खासतौर से पुरातात्विक साक्ष्य हमारे संग्रह में बहुत बड़ी मात्रा में है, जो ये सिद्ध करते हैं कि ये यहाँ पर मंदिर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, इस म्यूजियम में ऐसे सैकड़ों प्राचीन अवशेष मिले हैं जो न सिर्फ संभल के धार्मिक इतिहास को बयां करते हैं, बल्कि संभल में हरिहर मंदिर होने के सबूत देते हैं। भगवान विष्णु की ये मूर्ति है और ये करीब 1,500 साल पुरानी है, गुप्त काल की कहलाती है। ये संभल क्षेत्र से ही मिली है और ऐसे तमाम साक्ष्य, बहुत सारे साक्ष्य हमारे म्यूजियम में हैं
जो इस बात का दावा पेश करते हैं कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था। इससे पहले भी हमने संभल मस्जिद विवाद पर बड़ा खुलासा किया था और आपको 1969 का गजेटियर मुरादाबाद दिखाया था, जिसमें ये दावा किया गया कि संभल में मंदिर पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। मंदिर को बाद में इस्लामी शासक ने मस्जिद में बदला। संभल का पुराना नाम संभलापुर था। पूरा शहर बिखरे हुए टीलों पर था। इस्लामी शासन आने से पहले किले पर भगवान विष्णु का मंदिर था। किले पर बने मंदिर का नाम हरि मंदिर था। ये बात मंदिर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की नहीं है, ये बात है मंदिर में कैसे मस्जिद बन गया, ये सवाल है। और उस सवाल के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, न्यायालय तय करेगा। हम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी बात तर्क एविडेंस के आधार पर रखेंगे और कोर्ट का निर्णय आएगा। पर यहां जैसे ही कोर्ट कोई निर्णय देता है, आप जज के ऊपर आक्षेप लगाते हो, आप पर्सनल कमेंट करते हो वकीलों के ऊपर, उसके बाद आप मारने की धमकी देते हो, उसके बाद आप पत्थरबाजी करते हो, आगजनी करते हो प्रशासन को, यू टेक इट फॉर अ राइड, और उसके बाद आप ये कहते हो कि हम तो संविधान से चलेंगे। इसी सरकारी गजेटियर में हरिहर मंदिर का प्राचीन मैप भी है, जिसमें दर्ज है कि टीला जहां पर शाही मस्जिद है उसमें हरि मंदिर कहाँ है, शिव मंदिर कहाँ है, विष्णु कुंड कहाँ है, यज्ञ कूप कहाँ है। दोनों पक्षों के लिए सर्वे हो जाए, जो चीजें हैं वहाँ पे दिखाई पड़ जाए, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, फुल वीडियोग्राफी की एक पेन ड्राइव आपको दी जाएगी। कोई सर्वे रिपोर्ट पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। गजेटियर में मौजूद साक्ष्य संग्रहालय में 1500 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्तियों को इंसाफ के इंतजार में रखे ये अवशेष आज भी अपनी गवाही का इंतजार कर रहे हैं। वो गवाही जो हरिहर मंदिर के अस्तित्व को फिर से जिंदा होने का जरिया बन सकते हैं। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी। एक नहीं ऐसे कई सबूत हैं जो संभल में मंदिर होने का दावा करते हैं। कौन से वो 5 सबूत है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। सबूत नंबर 1 है भगवान विष्णु की मूर्ति। इसके अलावा सबूत नंबर 2 भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। सबूत नंबर 3 है हरिहर मंदिर के अवशेष। सबूत नंबर 4 सरकारी गजेटियर में मंदिर होने का प्रमाण मिलता है। और सबूत नंबर 5 है मैप में हरिहर मंदिर का दावा किया गया है। तो एक नहीं ऐसे कई सबूत है। और आपको यह भी बता दें कि संभल का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार यानी कल की अवतार जो होगा। बहुत जानता हूँ, आप इतना नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं इलाहाबाद में मैं वकील था, तो बहुत आरएसएस के लोग थे जो लॉयर्स इन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट, बहुत मेरे मिलना जुलना था उनके साथ। इनमें देखिए एक तो दे ग्लोरीफाई एंशिएंट इंडिया एंड दूसरा दे हेट मुस्लिम्स। और इनका जो लीडर था एक जमाने में गोलवालकर गुरुजी, उनकी 2 किताबें हैं, एक तो नेशन हू डिफाइंड और दूसरा बंच ऑफ थॉट्स, इन विच ही हैज स्पाउटेड वेनम अगेंस्ट मुस्लिम्स and that is compulsory reading for all RSS members. So Modi must have read it many times. उसमें जहर उगला है मुसलमानों के खिलाफ कि ये लोग तो फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और रेपिस्ट हैं, लूटर्स हैं, टेररिस्ट हैं एंड ऑल दैट। यही इनके खोपड़े में डाला जाता है। और मोदी जी बचपन से आरएसएस में रहे हैं। बात करें सबका साथ सबका विकास। ये मोदी जो है, ये मैंने कहा ना कि इसके जो 10 ईयर टर्म हुआ है, इतना एक तो देखिए सबसे द टेस्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटी इज वन एंड ओनली वन, एंड दैट इज डज इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, डज इट गिव देम बेटर लाइव्स। मोदी जी के दौरान आप जानते हैं क्या तो आपका सरकार पे भरोसा नहीं, मोदी पे भरोसा नहीं, जुडिशरी पे भरोसा नहीं, जनता पे भरोसा नहीं, भरोसा है किस पे? रेवोल्यूशन पे। अच्छा, आई एम कॉन्फिडेंट आएगा, इट विल टेक टाइम। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ग्रेट सैक्रिफाइसेस हैव टू बी मेड। क्रांति तो जरूरी है दोस्तों, और इतिहास गवाह है कि क्रांति ने लोगों का गुरूर तोड़ा है। हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, सद्दाम हुसैन और न जाने कितने नाम हैं, गिनती नहीं होगी पूरी। और ये जो अपने वाले हैं इनका गुरूर भी टूटेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। फिर गोपाल दास नीरज की पंक्तियों में भी सच हो जाएंगी। आखिर वो भारत किसको नहीं चाहिए? मुझे तो वही भारत पुराना चाहिए जिसमें प्रेम था, सद्भाव था, प्यार था। क्या आपको चाहिए? एक शेर है, इख्तिलात चमन में रंगोबू से बात बनती है, इख्तिलात चमन में रंगोबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में।
नमस्कार।